Hello everyone. Today we will study tumor lysis syndrome. So what is tumor lysis syndrome? When we give the chemotherapy, there is lysis of tumor cells. During the lysis of tumor cells, there is the release of electrolytes. And these electrolytes can damage the renal function, can affect cardiac activity, and can impact CNS functions. So tumor lysis syndrome is actually metabolic emergency. So the definition of tumor lysis syndrome is it's an metabolic emergency where there is electrolyte imbalance which can derange the renal function, cardiac function and central nervous system functions. So your three organs are affected and with multiple electrolyte imbalances. So this is the definition of tumor lysis syndrome. When you give the chemotherapy to the patient, due to lysis of tumor cells, their creation of a metabolic emergency due to electrolyte imbalances which can impact renal function, cardiac function, central nervous system function. No effect on pulmonary function. No, mainly these three organs are affected. But 100% patients usually affected renal function. These are affected in few patients. Right? So my first heading, that is definition, is covered. Definition of tumor lysis syndrome. Now the second thing, what are the defining criteria of how you will define in a patient or identify that is a tumor lysis syndrome? How you will identify? There are the Cairo-Bishop criteria. Cairo-Bishop criteria to identify tumor lysis syndrome. Right? There are laboratory criteria and clinical criteria. Total 4 laboratory criteria. Among these 4, if 2 or more are present, then their Cairo-Bishop criteria is present. If clinical, there are 2 criteria. 2, you can say 3 criteria. If 1 or more is present. Right? So what are the laboratory abnormalities? Uric acid. Increase in uric acid. Uric acid increases above 8 milligram per deciliter. If the calcium decreases less than 7 milligram per deciliter, potassium, if it is more than equal to 6 millimoles per liter, and phosphate, if it is more than 4.5 in adults and 6.5 in children, pediatric age group. So these 4 abnormalities. Everything is rising except the calcium. Or there is one more thing, if there are 25% change in any electrolyte from the patient's baseline. अगर किसी पेशेंट का बेसलाइन यूरिक एसिड ही 3 है तो उसमें 25% इंक्रीज हो जाए इस सेंस में, राइट? सो हाइपर यूरिसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया. अभी ये थोड़ा ये लग रहा होगा कि मैं कैसे याद करूं इनको, बट जब पैथोफिजियोलॉजी बताऊंगा मैं तब आपको पता लग जाएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज बढ़ रही है या कैल्शियम कैसे कम हो रहा है.
जब आपको ये पता लग जाएगा तो आपको लग जाएगा पता कि अच्छा ये 4 इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एनी टू प्रेजेंट होना जरूरी है। हाँ, डिफाइन फॉर ट्यूमरलाइजेशन। यस। ओके। क्लिनिकल में आता है कि अगर सीरम क्रेटिनिन 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, 1.5 या अपर लिमिट से ज़्यादा हो, आई थिंक अपर लिमिट से, सॉरी, जो भी लिमिट है उससे हाँ, 1.5 टाइम्स। यस, 1.5 टाइम्स इनटू अपर लिमिट नॉर्मल से ज़्यादा हो ओके। सीरम क्रेट, तब हम बोलेंगे क्लिनिकल क्राइटेरिया, या फिर उसे कार्डियक इशू आ रहा है या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीजर आ सकते हैं पेशेंट को, कार्डियक में एरिथमिया हो सकता है एंड सडन कार्डियक डेथ। ओके। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि सीरम क्रेटिनिन क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्यों आ गया, हाँ है ना? हाँ, बड़े इंक्लूडिंग बट इंक्लूडेड इन क्लिनिकल क्राइटेरिया, क्योंकि एक्चुअली ना ये एक्चुअली रीनल, लैब में आ जाना चाहिए। ये एक्चुअली ना रीनल फंक्शन का मार्कर है। ओके। हाँ, तो रीनल फंक्शन क्लिनिकली डिटोरेट कर रहे हैं। मैंने बताया ना 3 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। किडनी का कैसे पता लगाओगे? क्रेट से। कार्डियक का कैसे पता लगाओगे? एरिथमिया एसिडी से। सीएनएस का कैसे पता लगाओगे? सीजर से। तो ये 3 ही ऑर्गन है, बस 3 ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कायरो बिशप क्राइटेरियाज। तो आपने जब पेशेंट आया आपके पास कीमोथेरेपी रिसीव करने के बाद, उसके ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, क्लिनिकली आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि पेशेंट इन द ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो इसमें ना आपको थोड़ा सा रिस्क ग्रुपिंग जाननी जरूरी है। अगर आपको रिस्क ग्रुपिंग पता होगी तो आप पेशेंट का कैसे उसको फटाफट से मैनेज करना है। जैसे पेशेंट आया, आपको ये पता होना चाहिए कि यस, ये पेशेंट ज़्यादा प्रोन है कि इसको ट्यूमर लाइसिस अग्रेसिवली मुझे ट्रीट करना पड़ेगा, या फिर इसको मैं जस्ट मॉनिटर कर सकता हूँ। तो ये हो सकता है लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क एंड हाई रिस्क। कुछ मैलिग्नेंसीज हैं जो लो रिस्क में आएंगी, कुछ मैलिग्नेंसीज इंटरमीडिएट रिस्क में आएंगी, कुछ मैलिग्नेंसीज हाई रिस्क में आएंगी। तो जितने भी आपके सॉलिड ट्यूमर्स हैं वो सब लो रिस्क में होते हैं। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज जो है ना वो ज़्यादातर हाई इंटरमीडिएट रिस्क में आती हैं, क्योंकि ट्यूमर लाइसिस हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज में ही ज़्यादा होता है। तो लो रिस्क है अगर 1% से भी कम रिस्क है ट्यूमर लाइसिस का, इंटरमीडिएट है अगर 1 to 5% रिस्क है, और हाई है अगर 5% से ज़्यादा रिस्क है ट्यूमर लाइसिस होने का किसी मैलिग्नेंसी में। तो सॉलिड ट्यूमर हो गए, मल्टीपल माइलोमा हो गया, CML हो गया, ऑल्दो आप देख रहे हो ये भी हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज हैं, बट दे हैव वेरी लो रिस्क ऑफ लैंड अप इनटू ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ठीक है। तो सॉलिड ट्यूमर, मल्टीपल माइलोमा, CML, हाँ, इंडोलेंट NHL, जो स्लो ग्रोइंग NHLs होते हैं, दे आर इंडोलेंट NHLs, जो फास्ट ग्रोइंग नहीं होते। अब आप आ जाओ हाई रिस्क में। हाई रिस्क में आता है बर्किट्स लिम्फोमा, सबसे इंपॉर्टेंट है वैसे बर्किट्स लिम्फोमा, बहुत कॉमन है बर्किट्स लिम्फोमा में ट्यूमर लाइसिस का होना। और बर्किट्स लिम्फोमा इधर भी आता है, बट इसमें एक बात होती है कि जो LDH है वो आपका लेस देन 2 टाइम्स अपर लिमिट नॉर्मल है। LDH दिखाता है ट्यूमर बर्डन को, जिसका LDH ज़्यादा होगा उसका ट्यूमर बर्डन ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो अगर LDH ज़्यादा है 2 टाइम्स से ज़्यादा, तो मतलब ट्यूमर बर्डन काफ़ी हाई है। इसलिए हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज में हम LDH हर पेशेंट का करवाते हैं टू सी द ट्यूमर बर्डन। सेलुलर टर्नओवर को बताता है, सेल कितनी फास्ट डिवाइड कर रही है। तो बर्किट्स लिम्फोमा हो गया, और इधर आता है आपका लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा। और इंटरमीडिएट में एक ग्रुप और आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है कि आपका एडल्ट T सेल ल्यूकीमिया,
डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, मेंटल सेल लिम्फोमा, ये सारी मैलिग्नेंसीज अगर इनके साथ आपका जो LDH है वो 1 to 2 टाइम अपर लिमिट नॉर्मल है, अगर यही सारी मैलिग्नेंसीज इधर आ जाएं और LDH 2 टाइम्स अपर लिमिट नॉर्मल से भी ज़्यादा हो तो ये हाई रिस्क में आ जाती हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया देने के लिए है, सिर्फ इतनी बड़ी टेबल है, याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सॉलिड ट्यूमर आ गए तो बहुत ही लो रिस्क है, अगर हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज हैं तो वो इधर आ जाएंगी, तो उसमें रिस्क थोड़ा हाई है। अब मान लो आपने पता लगा लिया रिस्क, अब आप करोगे क्या इस रिस्क का, करना क्या है, पता तो लग गया कि ठीक है ये लो रिस्क है, इसको मैंने कीमो दी, इसको कीमो दी, इसको कीमो दी, अब ट्यूमर लाइसिस हो रहा है, मैं क्या करूं। तो लो रिस्क वाले में आप मॉनिटरिंग करके और हाइड्रेशन करके भी काम चला सकते हैं, पेशेंट विल डू बेटर, क्योंकि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज हाइड्रेशन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में। irrespective of cardiac and renal हाँ, आपने जो भी करना है हाइड्रेशन के बाद ही करना है, क्योंकि आपने पहले इलेक्ट्रोलाइट्स और इन सबको ठीक करना है। ट्यूमर लाइसिस में क्या होता है, जो ट्यूमर सेल्स ब्रेक हुई हैं उनके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसको बॉडी में यूरिन से आउट करना है, तो उसके लिए हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन। सो हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन, तीनों कैटेगरी में आप सबसे पहले हाइड्रेशन करोगे। जो लो रिस्क है उसमें हाइड्रेशन तक भी आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी मेडिकेशन, राइट। सो देयर रोल ऑफ एलोप्यूरिनोल इज प्लस माइनस। हम एलोप्यूरिनोल क्यों देते हैं, क्या होता है, ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट है उसमें आप एलोप्यूरिनोल जरूर दोगे, और जो हाई रिस्क है उसमें आप रेसब्यूरिकेज भी दोगे अलोंग विद एलोप्यूरिनोल। हाइड्रेशन, एलोप्यूरिनोल और रेसब्यूरिकेज का रोल भी हाई रिस्क में आ जाता है, वो मैं ट्रीटमेंट में समझाऊंगा कि क्यों, क्या, कैसे। बट इंपॉर्टेंट इज ये रिस्क ग्रुपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता लगे मुझे क्या करना है, मुझे कैसे पेशेंट को अग्रेसिवली ट्रीट करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे, जो इंटरेस्टिंग है, जिससे आपको ये सारी बातों का पता चलेगा। हमने कीमोथेरेपी दी, ट्यूमर का लाइसिस हुआ, ट्यूमर सेल्स का लाइसिस हुआ, जो ट्यूमर सेल्स थे वो ब्रेक होने लग गए। ब्रेक होते ही क्या होता है कि उनसे पोटेशियम रिलीज होता है, सेलुलर पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर बन जाता है, और पोटेशियम हाई होने का मतलब क्या है, हाइपरकैलीमिया। तो हमारे 4 में से एक क्राइटेरिया था हाइपरकैलीमिया, तो हाइपरकैलीमिया तो सीधा ही हो रहा है, और हाइपरकैलीमिया अपने आप में टैकियारिथमियाज करवा सकता है। तो कार्डियक इशू का मेन कारण है हाइपरकैलीमिया, यहाँ से एरिथमिया, सडन कार्डियक डेथ, कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो सकते हैं, तो इसलिए हाइपरकैलीमिया इंपॉर्टेंट है। फिर सेल जब करते हैं तो डाई करते हैं तो उनसे लैक्टेट रिलीज होता है, लैक्टेट रिलीज होने की वजह से पेशेंट एसिडोसिस में चला जाता है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का, कि पेशेंट एसिडोसिस में जा सकता है, राइट। अब जो ट्यूमर लाइसिस हुआ, तो ट्यूमर लाइसिस होने के बाद उसका जो सेलुलर डीएनए है वो निकल जाता है बाहर। जैसे ही ट्यूमर लाइसिस होगा देयर इज रिलीज ऑफ डीएनए। ठीक है, जो एसिडोसिस हो रहा है हाँ। वो लैक्टेट की वजह से हो रहा है। हाँ इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ, ठीक है। तो जैसे ही ये जो डीएनए है, डीएनए का जब ब्रेकडाउन होगा तो एक तो प्यूरिन निकलेंगे, पता है ना, डीएनए प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स का मिलके बना होता है, और उनके बीच में फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं जो उनको बाइंड करके रख रहे होते हैं। तो आपके प्यूरिन्स भी निकल गए, फॉस्फेट भी निकल गया, ठीक है। फॉस्फेट अगर निकल गया तो हाइपर फॉस्फेटीमिया हो गया यहीं पर, और जब फॉस्फेट निकलता है ना तो ये कैल्शियम को अपने में बाइंड कर लेता है हमेशा, तो हाइपोकैल्सीमिया हो गया।
फॉस्फेट रिलीज होता जा रहा है, कैल्शियम से बाइंड करता जा रहा है, ये तो बढ़ता जा रहा है और ये कैल्शियम को अपने में घटाता जा रहा है। और जब भी बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया होता है ना, तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी हो जाता है, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन हाइपोकैल्सीमिया में रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो प्यूरीन्स हैं वो आगे कन्वर्ट होते हैं हाइपोजेंथिन जेंथिन में, ये कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में, और यहां पे जो एंजाइम होता है दैट इज जेंथिन ऑक्सीडेज। ये जेंथिन ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है जो इसको प्यूरीन्स को आगे कन्वर्ट करेगा। असल में क्या है कि जैसे कोई सेल डाई कर गई, उसका डीएनए बाहर आ गया, प्यूरीन बन गया। अब इस प्यूरीन को ना हमें बॉडी से बाहर निकालना है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो ये यूरिक एसिड जमा हो जाएंगे रीनल ट्यूब्यूल्स में और कर देंगे यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी, ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी बोलते हैं। ये ग्लोमेरुलस होता है, ये ट्यूब्यूल्स होते हैं इसके, डिसेंडिंग असेंडिंग कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब यूरिक एसिड यहां आके मान लो जमा हो गए अगर, तो यूरिन फिल्टर नहीं होगा ना, तो क्रैट बढ़ने लग जाएगा। दिस इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी। ऑब्स्ट्रक्शन कर दी ना इसने, तो ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी, इसलिए क्रैट बढ़ता है। तो क्लिनिकल क्राइटेरिया समझ में आ गया, क्रैट क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। पोटेशियम बढ़ रहा है, हाइपरकैलीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। ठीक है, और ये यूरिक एसिड जो है ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है एलेंटोइन में, और ये हमारे यूरिन से आउट हो जाता है। आउट तो यूरिक एसिड भी होता है, नॉर्मल कंडीशन में ना हमारी यूरिन से यूरिक एसिड इजीली निकल जाता है, बट अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो नहीं निकल पाएगा, और यूरिक एसिड डिसोल्व इजीली नहीं होता। एलेंटोइन बहुत इजीली डिसोल्व हो जाता है। और यहाँ पे एक एंजाइम होता है यूरिकेज। यूरिकेज एक एंजाइम होता है जो एलेंटोइन बनाता है। अब मैं ये सारे एंजाइम्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी मेडिसिन्स काम करेंगी यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है, अब देखो आप, अगर यूरिक एसिड बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा तो यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। हमें यूरिक एसिड नहीं बनने देना। हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर दें। इसको ब्लॉक करने के लिए हमारे पास दो मेडिसिन्स हैं, एलोप्यूरिनोल, फेबुक्सिस्टैट। ये जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं। इन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा। ठीक है, ये दोनों हम यूज करते हैं। अभी मैंने बताया एलोप्यूरिनोल को हम यूज करेंगे। जो ये एंजाइम है जेंथिन ऑक्सीडेज है, हाँ, जो कि प्यूरिन्स को हाइपोजेंथिन में जिनको फिर यूरिक एसिड में बना रहा है। हाँ, हमें यूरिक एसिड बनने नहीं देना। इट्स वेरी डेंजरस फॉर द किडनी, क्योंकि ये एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे एलोप्यूरिनोल और फेबुक्सिस्टैट से। बट अब एक बात बताओ, अगर यूरिक एसिड पहले से ही बना हुआ है बॉडी में, पेशेंट को कीमो दिए 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन बाद भी उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तब हमने एलोप्यूरिनोल स्टार्ट किया। एलोप्यूरिनोल तो बनने से रोकेगा, लेकिन जो हमारी बॉडी में पहले से ही हाइपर यूरिसीमिया हो रहा है, यूरिक एसिड हाई है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी है ना, ये पहले से आई है, इसका क्या करना है? इसको कैसे एक्सप्लेन? हाँ, तो इसके लिए हमारे पास है रेस्ब्यूरिकेज, जो हम लास्ट स्टेप में यूज कर रहे थे। रेस्ब्यूरिकेज इज रिकम्बिनेंट यूरेट ऑक्सीडेज। रिकम्बिनेंट यूरेट ऑक्सीडेज है जो यूरिक एसिड को का ऑक्सीडेशन करके एलेंटोइन में कन्वर्ट करता है और यूरिन से आउट करा देता है। ये डायरेक्ट यूरिक एसिड को कम करने का काम करता है रेस्ब्यूरिकेज। इसलिए अगर हाई रिस्क ग्रुप है, बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बना हुआ है, यू विल गिव द रेस्ब्यूरिकेज। सो रेस्ब्यूरिकेज इज ट्रीटमेंट, एलोप्यूरिनोल इज प्रिवेंशन। यूरेट ऑक्सीडेज है ये, रिकम्बिनेंट यूरेट ऑक्सीडेज है ये। ठीक है, तो अब आपको ट्रीटमेंट के स्टेप्स पता लग गए
कि ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ और ख़ास बात है कि ऐसे पेशेंट्स को ना एसिडोसिस हो रहा होता है। उनका ना हम पता कैसे लगाते हैं कि मान लो यूरिन का पीएच जो है वो 6 या 7 से कम होता है ऐसे पेशेंट्स का। और जब यूरिन का पीएच कम होता है तो यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी ज़्यादा होती है। मतलब जब पीएच कम होगा तो यूरिक एसिड के जो स्टोन्स हैं, लगा लो, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ज़्यादा होगी। अब इसको करेक्ट करने के लिए कई सारे लोग सोडा बाइकार्ब देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब मान लो हम सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो इस पीएच को बढ़ा देगा, पीएच को 7 से ऊपर ले आएगा। हमारा गोल होता है पीएच को 7 से ऊपर रखना, यूरिनरी एल्कलोसिस करवाना, ताकि ये यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी ना हो। बट होता क्या है, जब हम एल्कलोसिस करवाते हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स बनने लग जाते हैं, ये नेफ्रोपैथी स्टार्ट हो जाती है। कैल्शियम फॉस्फेट नेफ्रोपैथी यूरिन एल्कलाइन होता है ना, तब होती है। तो मतलब यूज ऑफ सोडा बाइकार्ब इन द मैनेजमेंट ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इज कंट्रोवर्शियल। आप यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी से बचा लोगे, कैल्शियम फॉस्फेट नेफ्रोपैथी में लैंड अप करवा दोगे। तो ये एक इसमें पॉइंट है, दे या ना दे। यस, वो ये प्रोफाइलिक्स में नहीं देना है, अगर ट्रीटमेंट पीएच कर 7 से कम है हाँ, तब देना। यस, तो तो प्रोफाइलिक्स में नहीं देना। हाँ, प्रोफाइलैक्सिस में मत दो। जनरली अभी क्या दे रहे हैं, जो ऑलरेडी गाइडलाइन थी उसमें प्रोफाइलिक्स में सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहे थे, लेकिन वो नहीं देना। अगर पीएच कम आ रहा है देन वी गिव सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारी पैथोफिजियोलॉजी भी होगी। अब आप स्क्रीनिंग कैसे करोगे? स्क्रीनिंग का मतलब है आपने किसी पेशेंट को अभी तक कीमो नहीं दी है, बट आपको पहले से पता लग गया कि ये पेशेंट ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में लैंड अप करेगा, तो आपको स्क्रीन करना भी जरूरी है। तो आप स्क्रीनिंग के लिए क्या क्या करोगे? पहले तो आप टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी देखो, यानी उसकी रिस्क ग्रुपिंग करो। जो मैंने पहले रिस्क ग्रुपिंग बताई, आपको पता लग जाएगा कि ये लो में है, इंटरमीडिएट में है, हाई रिस्क में है। दूसरा, उसके ऑर्गन फंक्शन चेक करो। अगर उसका पहले से ही क्रेट हाई है, इसका मतलब उसको हाई रिस्क है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होने का। पहले से क्रेट हाई है, उसके ज़्यादा चांसेस है कि उसकी रीनल फंक्शन डिरेंज होंगे। तीसरा है हाई ट्यूमर बर्डन का पता लगाओ। यस, अगर उसका LDH 2 टाइम से पहले से ही ज़्यादा है, इसका मतलब हाई चांसेस हैं कि उसको ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होगा। तो ये 3-4 क्राइटेरिया हैं आपको स्क्रीन करने के लिए। अब आप ट्रीटमेंट कैसे शुरू करोगे, मतलब हाउ विल यू स्टार्ट? कि पेशेंट आपके पास आ गया है, पेशेंट का आपने कायरो बिशप क्राइटेरिया से कंफर्म कर लिया दैट पेशेंट हैज़ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, तो आप उसकी ट्रीटमेंट शुरू कैसे करोगे? आप उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे थ्रू द हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में आप उसको 3000 ml पर मीटर स्क्वायर पर डे फ्लूइड दोगे। फ्लूइड यूजुअली आप NS और हाफ NS दोगे। इससे आप स्टार्ट कर दोगे उसकी ट्रीटमेंट। फ्लूइड दोगे आप 1 to 2 डेज के लिए, 24 से 48 घंटे तक उसे फ्लूइड दोगे, ठीक है। उसके बाद आप रिपीट कराओगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। सीरम इलेक्ट्रोलाइट आपने रिपीट कराए, आपका यूरिक एसिड अभी भी हाई आ रहा है, ठीक है, पेशेंट अभी भी हाइपरकैलीमिया में है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स प्रेजेंट हैं। तो अब आप मतलब आप हाइड्रेशन के साथ यहाँ पे पेशेंट को एलोप्यूरिनोल वगैरह भी दे दो शुरुआत में ही। अब आप यहाँ पे रेस्ब्यूरिकेज ऐड कर दोगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले आपने हाइड्रेशन और एलोप्यूरिनोल कराया, 1-2 दिन बाद भी ये सेटल नहीं हुए तो आपने रेस्ब्यूरिकेज दे दिया, ठीक है। अब आपने रेस्ब्यूरिकेज जो है वो मैक्सिमम 3 to 5 डेज के लिए दिया जाता है। 0.2 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से इसका IV इन्फ्यूजन जाता है।
जो एलोप्यूरिनोल है ये ओरल ड्रग है, फेबुटाज भी ओरल ड्रग है। आप एलोप्यूरिनोल की जगह फेबुटाज यानी फेबुक्सिस्टैट भी दे सकते हो, ठीक है। इनकी अभी डोजेज भी बताऊंगा मैं अच्छे से। तो आपने रेस्ब्यूरिकेज भी 3 से 5 दिन के लिए दे दिया, फिर 3 से 5 दिन के बाद आपने फिर से देखा, इसमें हाइड्रेशन और एलोप्यूरिनोल कंटिन्यू रहेगा। फिर से आपने देखा फिर भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो आपको हीमोडायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा, नो अदर अल्टरनेटिव। पेशेंट की डायलिसिस करानी पड़ेगी टू करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस टू डिक्रीज द सीरम क्रेटिनिन। अब मान लो वहीं पे पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेक्ट हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, और अगर आप पेशेंट को कीमो देना चाहते हो तो यू कैन गिव द कीमो। मान लो पेशेंट सेकंड कीमो के लिए आया है तो यू कैन गिव द कीमो अगर पेशेंट को नीडेड है, राइट। इसमें एलोप्यूरिनोल मेडिसिन में चॉइस का कुछ रहता है क्या? हाँ मैं अभी यस मैं वही बताने लगा हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने स्टेप बाय स्टेप बताया, लेकिन अगर पेशेंट ऑलरेडी लो रिस्क कैटेगरी का है, हाँ देन तो वो ठीक ही हो जाएगा ना। नहीं, तब तो ये स्टेप तो हाई रिस्क में है, हाँ हाई रिस्क में है तो यू अपफ्रंट स्टार्ट द रेस्ब्यूरिकेज, क्योंकि रिस्क बहुत हाई है। मान लो पेशेंट का यूरिक एसिड 15 है, 18 है, 20 है, व्हाई विल यू वेट, स्टार्ट द रेस्ब्यूरिकेज। और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि नॉट मोर देन 5 डेज, 3 to 5 उसके बेनिफिट नहीं मिला, यूरिक एसिड कम, मतलब हाँ कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो जो एलोप्यूरिनोल है और जो फेबुक्सिस्टैट है, एलोप्यूरिनोल एक प्यूरिन एनालॉग है, ये नॉन प्यूरिन ड्रग है। दोनों की दोनों ड्रग ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को ही इनहिबिट करने वाली हैं। ये भी फर्क है, ये प्यूरिन एनालॉग है, ये नॉन प्यूरिन एनालॉग है। इसका मतलब ये तो सिलेक्टिव है, ये नॉन सिलेक्टिव है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये प्यूरिन एनालॉग है। जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म और पिरिमिडीन मेटाबॉलिज्म की जो साइकिल है, उसमें जो एंजाइम ज़ैंथिन ऑक्सीडेज जैसे होंगे, ये सब जगह एक्ट करना शुरू कर देगा। और ये नॉन प्यूरिन एनालॉग है, ये सिर्फ ज़ैंथिन ऑक्सीडेज पे काम करता है अपना, सो इट्स सिलेक्टिव। ये मेन डिफरेंस हो गया इनके अंदर। नहीं, फेबुक्सिस्टैट इज बेटर। यस, रिजल्ट्स में भी फेज 3 ट्रायल्स में फेबुक्सिस्टैट के रिजल्ट्स बेटर रहे हैं एज कंपेयर टू एलोप्यूरिनोल। उसके अलावा मैं और बताता हूँ क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर पेशेंट को रीनल फेलियर है तो एलोप्यूरिनोल की डोज मॉडिफिकेशन मस्ट है। डोज मॉडिफिकेशन करो, कम कर दो। यूजुअली हम एलोप्यूरिनोल की डोज 300 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे देते हैं, इसको कम कर दो, ठीक है। यूजुअली जो हम देते हैं ना, वैसे हम 100 mg TDS दे देते हैं पेशेंट्स को, तो आप 100 mg BD दे दो। वहीं रीनल फेलियर में जब तक क्रेटिनिन क्लियरेंस 30 से ऊपर है, फेबुटाज इजीली दिया जा सकता है, इवन 30 से भी नीचे दिया जा सकता है, बट 30 तक तो बिल्कुल ही सेफ है। 40 mg OD से शुरू करते हैं हम, 40 mg BD तक हम इजीली दे सकते हैं। और इसकी खास बात ये भी है, ये तो हमें TDS फॉर्म में देना है, ये हम OD में काम चला सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कम है। हाँ, क्रेटिनिन तो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। ये क्रेटिन क्लियरेंस है, ये क्रेटिन नहीं है, ये क्लियरेंस है, ये GFR होती है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है, हिपैटिक इनसफिशिएंसी। अब किसी पेशेंट का लीवर भी फेलियर में है तो एलोप्यूरिनोल आप वहां पर नहीं दे सकते, क्योंकि LFT डिरेंज करता है, एलोप्यूरिनोल डिरेंज, जबकि हिपैटिक सेफ ड्रग है फेबुटाज। हाँ, फेबुटाज के कई सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। हाँ, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, वाइवा में आपसे आराम से पूछेंगे कि विच वन यू विल प्रेफर, डोज क्या दोगे। हाँ, कि ऐसे ऐसे पेशेंट है, उसके लीवर फंक्शन डिरेंज है, विल यू गिव एलोप्यूरिनोल, विल यू गिव फेबुक्सिस्टैट।
तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं देख लेता हूँ कुछ पेंडिंग तो नहीं रह गया है। अब इसमें बस एक टॉपिक रह गया है कि व्हाट आर दी इंडिकेशंस ऑफ हीमोडायलिसिस। कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं कि यू कैन डायरेक्टली जंप टू द हीमोडायलिसिस अगर वो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में इंडिकेशंस कब कब बनती है हीमोडायलिसिस की? अगर आपका पोटेशियम 6 से ऊपर ही बना हुआ है और वो किसी भी मोडालिटी से करेक्ट नहीं हो रहा है। पोटेशियम को कम करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? हम पेशेंट को इंसुलिन देते हैं विद डेक्सट्रोज। हम पेशेंट को लूप डायरेटिक्स दे सकते हैं, जैसे कि लेसिक्स है, वो भी कम करता है, हाइपोकैलीमिया करता है, उसको भी दे सकते हैं हम। और पेशेंट को बीटा 2 एगनिस्ट भी दे सकते हैं। पेशेंट को पोटेशियम बाइंडर्स भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके एगोनिस्ट हम इसलिए देंगे ना कि पोटेशियम जो कार्डियक इवेंट कराए वो ना कराए, इससे पोटेशियम लेवल थोड़ी ना कम होगा बीटा 2 एगोनिस्ट से होगा क्या? होता है, ओके ठीक है। ठीक है। और हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं टू स्टेबलाइज द कार्डियक मसल्स कि वो एरिथमियाज में ना जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ये सब करने के बावजूद मान लो पोटेशियम करेक्ट नहीं हुआ, हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा। यूरिक एसिड आपका 10 से ज़्यादा है, फॉस्फेट भी आपका 10 से ज़्यादा है, और आपका जो रह गया आपका क्रेटनिन, क्रेटनिन भी 10 से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है। और दूसरा, अब एक इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी रहेगी ना, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का कोई लेवल नहीं है लो में कि आपको हीमोडायलिसिस करनी पड़े। बट अगर सिम्टोमेटिक हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपोकैल्सीमिया जब होता है पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिक टेटनी होती है, पेशेंट के हाथ ऐसे ऐसे टाइटनेस हो जाती है, तो उस केस में यू विल गो फॉर द हीमोडायलिसिस। तो ये पैरामीटर्स हमें आफ्टर जो हमने स्टार्टिंग में मैनेजमेंट किया उसके बाद हमें मेडिकल मैनेजमेंट फेलियर के बाद हीमोडायलिसिस का नंबर आता है। ठीक है, तो इंडिकेशन आ गई बस। पेशेंट को अगर सीजर्स आ रहे हैं तब भी आप हीमोडायलिसिस के लिए जा सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज कॉजेज सीजर्स। सीजर्स के लिए आपको हीमोडायलिसिस करवाना है। So this will end our tumor lysis syndrome topic. ग्रेट, थैंक यू। Thank you. बहुत अच्छा पढ़ाया। Okay.